So how's everyone doing? Okay. So, from what you've just said about the economy, um, there is some good news and there's not some very good news. Pakistan is the fifth youngest country in the world. That means the fifth youngest population. Over 60% of our population is under the age of 30. It is not possible for the government to provide everyone jobs. Now you are the people, you are the future of our country. You have to make it. And how you make it, it's up to you. So in this current scenario, I think everyone knows what's low-hanging fruits. Low-hanging fruits का पता है आपको? Low-hanging fruits are things that can be attained, achieved with relative less difficulty. I won't say ease, but less difficulty. So one low-hanging fruit in Pakistan is low productivity. यानी आप जो काम कर रहे हैं उसको आप बेहतर करके productivity improve करके उसको ज़्यादा effective बना सकते हैं. There are many opportunities. I think Siptan आपको बताएंगे, especially in the startup world. I think you all have to be imaginative. यानी देखें वो एक जो होता है ना pattern, set pattern, कि जी after I graduate I'll find a job and either in production or management or HR or marketing, and I will make my mark. But times have changed. That's not how it works anymore. There's no cookie cutter solution. You have to imagine and you have to find new ways and new ideas. Thank you very much, sir. Ma'am, over to you. Hello, Assalamu alaikum. जब आप बात कर रहे थे, सुन रही थी, and I was thinking and I'm looking at this wonderful collection of very colorful, energetic awam. So, अब फिर मैं इस टॉपिक को आज देख रही हूँ, प्रोफेशनल एक्सेलेंस. एक्सेलेंस के हवाले से व्हेन आई लुक बैक, हम होप की बात कर रहे हैं और हम टफ टाइम्स की बात कर रहे हैं. बहुत मुश्किल वक्त आया हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान पर बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो जब मुश्किल वक्त पर आप किसी इंडिविजुअल का, जब मैं किसी का सोचती हूँ और जिसने एक्सेलेंस पाई, वो इंडिविजुअल मेरे दिमाग में एक आता है, नेल्सन मंडेला. नाम सुने? या सो व्हेन आई थिंक ऑफ एक्सेलेंस, एंड फिर उनका एक कोट मुझे याद आता है और वो है, एंड आई वुड लाइक यू टू रिपीट इट, समथिंग स्पेशली फॉर टफ टाइम्स. एंड उनका ये कोट था कि अंग्रेजी में है, हम इसको बाद में उर्दू में भी ट्रांसलेट कर लेंगे. एंड द कोट इज, ही सेड, डू नॉट जज मी by my success. Do not judge me by my success. Judge me by how many times I fell and I got back up again. Somebody who stands up there as a model of excellence, somebody who was able to bring about itna bada change in the thinking in ऐसे मुल्क में जहाँ पर ब्लैक्स को अपनी राइट्स नहीं मिलती थी, और कितनी तकलीफ उन्होंने काटी, जेल काटा, लंबा जेल काटा. In the end, there was success and there was excellence. So, what is the message there? Can anybody repeat what he said? आपको क्या उसमें से याद रह गया? Anybody who wants to raise your hand?
Do they need a mic? Okay, so he said, do not judge me by my success, but judge me by the times I have failed and got up again. Exactly, exactly. Wonderful. Right? So ये tough times आएंगे. ये tough times आएंगे. They are part of life. And inshallah, जब हम hope की बात करते हैं, आप क्यों उठते हो जब आप गिर जाते हो? आप क्यों उठते हो? उम्मीद पे उठते हो, right? So वो उम्मीद, this is what we want from you. हमने अपनी लाइफ गुजार ली या गुजार रहे हैं, लेकिन हम अपने यंगस्टर्स से, आपसे, आपके टैलेंट से, आपकी स्किल्स से, आपके जज्बे से, आपकी एनर्जी से, आप अपने लिए भी उम्मीद रखेंगे और हमें भी, और सबको ये उम्मीद लगाएंगे. It should be a viral disease, so that anybody who falls down will get up again, and inshallah पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुश्किलात आएंगी. Take it as part of life. Take it as a challenge. Take it as an opportunity to learn. इससे कुछ ना कुछ सीख कर उठना है और ज़्यादा मजबूत उठना है. बिकॉज हमने मुश्किल टाइम तो गुजार लिया, और उस मुश्किल टाइम से हम भूखे प्यास से, बगैर नींद के, बगैर सोए, थके हुए हम उठ जाते हैं. और जब हम उठते हैं तो हम तैयार हो जाते हैं टू फाइट अगेन एंड टू मूव टुवर्ड्स एक्सेलेंस. That was my thought. Thank you, ma'am, for such a wonderful remark. We're gonna have tougher questions for you, but sir, over to you. Assalamu alaikum everyone. I'm honored to be here in front of with you and elite panel who are so experienced. I think hope का opposite क्या है? Fear. Right? We all have fears of losing something, of missing out on something. What if you were born today? Would you have fear? You won't have fear because you don't know what has happened in the past. So हमारे fears are based on certain past things, and I think जो आज की generation है, we all understand that things are never going to stay the same. The way it is changing, the way things are moving. आप COVID को ले ले, 2 साल पहले everything was shut down. We were not able to even go out of our own houses to even buy a grocery. Was that difficult, or is today difficult? I think we all know the answer, right? So there is definitely hope. Cycle hai. This is a cycle. There is some currency devaluation happening. Economic challenge, meltdown ho raha hai, throughout the world. It's not just Pakistan. Everyone is facing it. I think as young guys, you need to use this as an opportunity this time to learn and unlearn, as Waqar bhai really clearly says it, and I am doing that every day, unlearning and learning from the people I work with and the customers I talk to. So I think you are in the right place. यहाँ पर आप लोग सब आए, क्या करना है? Learn तो करने कुछ भी नहीं है, unlearn ही करना है ना वकार भाई, सही कह रहा हूँ? तो unlearn करना है, so unlearn कर ले fear को और learn कर ले hope को. So that is where we are moving forward. Great. Thank you very much, sir, for your opening remark as well. Ma'am, I'm going to start with asking a question from you. कि एक terminology हमने recently बहुत ज़्यादा सुनी है, और वो है कि employment opportunities तो बहुत available हैं, लेकिन लोग employable नहीं हैं. So what is this terminology which is called employability? आप क्योंकि you work with thousands of people and you take care of such level of recruitment as well many a times in your life, what do you think employability is, and what we as youngsters need to understand about employability? So जब मैं बैंक के हवाले से सोचती हूँ, हबीब बैंक, HBL में इस वक्त करंटली 24,000 लोग हैं, स्प्रेड अक्रॉस 15 कंट्रीज, मेजॉरिटी पाकिस्तान में. यू विल बी अमेज्ड कि हम खुद अब फिगर आउट कर रहे हैं.
अब जब हम इंटरव्यू करते हैं, हर साल HPL 3,000 नए लोग हायर करता है। 2 से 3,000 हमारे पास नए लोग आते हैं, कुछ इसलिए क्योंकि रिटायर हो गए, लेकिन ज़्यादा इसलिए बिकॉज वो हमें छोड़ के चले गए। सो टर्नओवर बहुत हाई है इस वक्त HPL में। सो हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या चीज़ है हमारे लिए। शुरू में हम कहते थे फिट फॉर जॉब, हमने टेलर लेना है, ये टेलर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें इस तरह का एक परफेक्ट किस्म का एक इंडिविजुअल चाहिए जो फिट हो जाएगा टेलर के जॉब में। लेकिन अब टेलर का जॉब भी चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है। हमें एक ब्रांच मैनेजर चाहिए, एक ये फिट डिस्क्रिप्शन है, इस तरह का ब्रांच मैनेजर होना चाहिए। सून 10 साल में 5 साल में हमें ब्रांच मैनेजर चाहिए ही नहीं होगा, बिकॉज ब्रांचलेस बैंकिंग आ जाएगी। सो अब पिछले 1-2 सालों में जो हम देख रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से, और कोविड ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, बिकॉज हम जहाँ पर दफ्तर में बैठ के काम करते थे, जब कोविड आया, विद इन 1 मंथ HPL हैड कन्वर्टेड 100% एक्सेप्ट फॉर सम ब्रांचेस जो ओपन थी इनटू वर्क फ्रॉम होम। सो क्या चीज़ थी विच मेड अस adapt and move on with business? And by the way, HPL ने कोविड टाइम्स में 2020 और 2021 में अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया। और ये कैसे हुआ? Because now the concept of employability is also changing, और हम जो अब लोग देख रहे हैं जब हम हायर करते हैं, वो लोग हैं जो एक अपना लर्निंग माइंडसेट रखते हैं, जल्दी से अडेप्ट कर सकते हैं, नई नई चीज़ें जल्दी से सीख सकते हैं और फ्लेक्सिबल हैं। बिकॉज मूविंग फ्रॉम वर्किंग इन द ऑफिस टू 100% वर्किंग फ्रॉम होम, पीपल हु वर सक्सेसफुल वर दोज जिन्होंने क्विकली टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया, जिन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया घर पर टू वर्क इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड येट स्टे कनेक्टेड। सो हम आजकल व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, व्हाट वी वैल्यू इन पीपल, देखिए टेक्निकल चीज़ें, बैंकिंग हम आपको सिखा देंगे, 6 महीने लगाएंगे, 9 महीने लगाएंगे, आपको सब आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ हम वी लुक फॉरवर्ड टू इज़ कि जो एम्प्लॉय हमारे पास आएगा वो वैल्यू कैसे ऐड करेगा, विद द ग्रोथ माइंडसेट, ओपन माइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। And I hope these are things that you will look forward to, and when you join an organization, देखिए पैसे को देखना, ग्रेड को देखना, believe me, after 30 years of work experience, उसको आप एक तरफ रखते हैं, because अगर आप दिलो जान लगाकर पैशन के साथ आप डिलीवर करेंगे, पैसा आपके पीछे आएगा ही आएगा, इज्जत आपके पीछे आएगी ही आएगी, डेवलपमेंट और प्रमोशन हो ही जाएगा। सो जस्ट गेट इन देयर एंड मेक श्योर कि जहाँ यू आर एडिंग वैल्यू and you are also enjoying life, and that is something that fits in with what you want to be. Long answer, I'm sorry. No problem. But Much needed, ma'am. Thank you very much. Mazhar Saab, you have seen lots in more than of 22 years of experience of your life, and I'm sure that you have seen people coming in, growing to leadership positions, going to multiple organizations. I'm sure you have created a lot of succession within your organizations as well. मैं आपसे एक बड़ा, और मैं चाहता हूँ कि हम सब वैसे तो बड़े हैपनिंग लोग हैं, लेकिन हमें कभी कभी जो है वो ब्रूटल रियलिटी चेक की ज़रूरत होती है प्रोफेशनल लाइफ में। सो आप हमें एक ज़रा ब्रूटल रियलिटी चेक दें कि ये प्रोफेशनल एक्सीलेंस क्या है
जो कि आज के नौजवान के अंदर से अक्सर औकात हमें मिसिंग नज़र आती है, जब वो इंटरव्यूज़ पे जाता है, प्रिपेयर्ड नहीं होता, जब वो जॉब पे हायर हो भी जाता है बाय चांस, तो फिर वो डू एज डायरेक्टेड पे बस 9 to 5 के एक माहौल में लगा रहता है और उससे ना ज़्यादा सोचता है ना उससे बाहर निकल के करने की कोशिश करता है। अगर करता भी है तो उसके अंदर आप एक्सीलेंस को या प्रोफेशनलिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस दैट यू हैव हैड वर्किंग with so many organizations, and what is the message that you would have for these people to adapt? So, nobody owes you anything. यानी किसी ने आपसे कोई उधार नहीं लिया हुआ है। आप जब जॉब पे जाते हैं, कोई नई जॉब पे, यू स्टार्ट समथिंग न्यू, यू हैव टू, वट एवर यू गेन, यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू प्रूव। एक हैल जिनीन यूज्ड टू बी ए बिजनेस लीडर, तो उन्होंने कहा था सक्सेस stands out like diamonds. Success stands out like diamonds. Everything else is excuses. अगर आप अपने मैनेजर को बताएं कि भाई मैंने ये, आपने जो टास्क मुझे दिया था, ये मैंने करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ये वजूहात थी, That's not good enough. लेकिन ये भी है कि हर दफ़ा सक्सेस नहीं होती. You will not always be successful. You have to give your best. You have to give your 100%. Okay. सो थोड़ा सा मैं देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, मैं आई एम थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोग अक्सर जो हैं वो, आई डोंट थिंक यू स्टार्टेड योर प्रोफेशनल लाइफ मोस्ट, और यू वेरी न्यू इन योर जॉब्स. देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आपने भी डिसअपॉइंटमेंट मेंशन किया था. सो डू यू नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है? Disappointment is the gap between expectation and delivery. यानी जो मैंने एक्सपेक्ट किया या आपके मैनेजर ने एक्सपेक्ट किया जो, और आपने जो डिलीवर किया, उसके जो गैप है, दैट इज़ डिसअपॉइंटमेंट. वो क्यों होता है? क्योंकि अक्सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक फेलियर होता है, नॉट ऑफ द एम्प्लॉई बट ऑफ द एम्प्लॉयर. यानी जो मैनेजर्स होते हैं कभी कभार वो इतना देखें, यू मस्ट डिफाइन वॉट योर रोल इज़ गोइंग टू बी. यानी आपने 12 महीने में जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जब अप्रेजल होती है, तो 12 महीने बाद या 6 महीने बाद ये देखा जाता है कि आपको जो टास्क्स असाइन किए गए थे वो आपने पूरे किया या नहीं. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट योर ऑब्जेक्टिव्स आर. और ये सिर्फ मैनेजर का काम नहीं, आपका काम है, बल्कि दिस इज़ more of your responsibility as an employee to make sure that there is a agreement between you and your manager कि भाई मैंने ये चीज़ें डिलीवर करनी है. ठीक है. अब रेपुटेशन कैसे बनता है? तो प्रोफेशनलिज्म की जो बात हो रही है, रेपुटेशन ऐसे बनता है कि आप एक दफ़ा गलती करते हैं, आपका मैनेजर कहता है जी चले हो गई कोई बात नहीं. 2 दफ़ा गलती करते हैं, 3 दफ़ा गलती करते हैं, उसके बाद जो आपका मैनेजर है वो कहता है यार मैंने इनको काम नहीं देना क्योंकि इन पे मैं डिपेंड नहीं कर सकता. यू हैव टू मेक योर सेल्फ डिपेंडेबल. ठीक है. जो मैनेजर होता है उसके पास नए काम आते हैं, कोई नई, लेट्स से देयर इज अ न्यू असाइनमेंट और देयर इज अ न्यू, लेट्स से अ न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड. ठीक है. आपने मेहनत किया, प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाह रहे हैं. अगर इफ़ योर मैनेजर थिंक्स यू आर डिपेंडेबल कि भाई हाँ मैं इनको काम दे के भूल सकता हूँ, दोबारा मुझे नहीं पूछना पड़ेगा ये काम आपने किया या नहीं किया. सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ डिपेंडेबल. इफ़ यू आर डिपेंडेबल, योर मैनेजर विल गिव यू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ़ यू गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल ग्रो. एंड व्हेन यू ग्रो, तो जैसे मैम ने कहा, सक्सेस, मनी, टाइटल्स विल फॉलो, वो बाद में आएंगे. सो डिपेंडेबल होना बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो यू हैव टू बी प्रोफेशनल. हाउ यू ड्रेस, मतलब देखें अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए ना. व्हेन यू वर्क, शो अप एट वर्क, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल. पंक्चुअलिटी हमारे नेशन में ये एक पंक्चुअलिटी का बड़ा क्या कहना चाहिए, एक फ्लॉ है कि हम वक्त की कदर नहीं करते. अगर किसी मीटिंग में कोई 5 मिनट 7 मिनट लेट आता है, आई वंडर कि 5-7 मिनट लेट क्यों आ रहे हैं. देखिए यू हैव टू प्लान अहेड ऑफ टाइम कि मैंने इतने बजे अगर पहुंचना है,
इफ़ somebody is late by half an hour or 40 minutes, तो फिर बात समझ आती है कि कोई इमरजेंसी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी वजह से वो नहीं आ पाए टाइम पे. लेकिन अगर वो 5-7 मिनट, वाई? एवरी मिनट इज इम्पॉर्टेंट. आई वर्क विद जर्मन्स एंड आई वर्क विद जापानीज. माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद जापानीज, आई हैड अ मीटिंग एट 12 o'clock, और वो मीटिंग से पहले मेरे ऑफिस के बाहर वो जापानीज 2-3 लोग आके खड़े हो गए. 3-4 मिनट पहले वो बाहर चहलकदमी कर रहे हैं. Now I am looking at my watch. It's not 12 o'clock. What are they doing here? You see, 12 o'clock means the meeting starts at 12. It doesn't mean that I show up 5 minutes after 12, then I shake hands, then I say greet. जो मैंने पहले कहा ना, लो हैंगिंग फ्रूट. देखिए, हमने प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी है, और प्रोडक्टिविटी ये छोटी छोटी चीज़ों से ही बढ़ेगी. सो टू मेक योर सेल्फ मोर डिपेंडेबल, यू हैव टू, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं आप. टाइम पे मैं आ सकता हूँ. देखें, कोई नया काम ऐसा है, जैसे आपको मैनेजर ने कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि हाउ डू आई सेल मैंगोज इन रूरल सिंध. सिंध में मैंगो उगते हैं ना, आम. तो अगर मैंने रूरल सिंध में आम बेचने हैं तो कैसे बेचूंगा? यू हैव नो आइडिया. आप शहर में रहते हैं, आपको नहीं पता कि मैं किसी देहाती को आम कैसे बेचूंगा, नहीं पता ना आपको. तो ये मुश्किल काम है. वक्त पे पहुंचना मुश्किल काम है नहीं है ना. सो ट्राई टू बी मोर डिसिप्लिन्ड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. अपना सेल्फ इवेल्युएशन भी करें आप. सेट योर सेल्फ गोल्स कि ये मेरा गोल है और इस पे मुझे पूरा उतरना है, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल ग्रो इन योर रोल. That's a long answer. Absolutely, but much needed. The brutal reality check. I'm sure that we'll take some notes out of it. Very important conversation. Sir, coming to your side, हमारे पास आज से कुछ साल पहले एक बड़ी interesting industry या terminology introduce हुई, which was called startup. और हमने एक startup culture, आप में से ज़्यादातर लोगों ने स्टार्टअप कल्चर के बारे में सुना भी होगा. आप में से कितने लोग ऐसे हैं बाय द वे जो कि कोई आइडिया रखते हैं और अपना स्टार्टअप चलाना चाहते हैं? जस्ट रेज योर हैंड. सी यू वुड सी सो मच ऑफ पोटेंशियल कमिंग इन. नाउ वर्किंग विद सो मेनी आइडियाज एंड वर्किंग विद सो मेनी यंग पीपल ऑल अक्रॉस द कंट्री, हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसमैच हुए हुए इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टार्टअप थिंग. हम इंस्पायर्ड तो सिलिकॉन वैली से हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो एफर्ट लगा रहे हैं वो फील्ड में कम और उस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में ज़्यादा लगा रहे हैं जहाँ पे आइडिया को फंड नहीं मिल सकता या वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट, नंबर वन. एंड नंबर टू, इज स्टार्टअप ओनली अबाउट बीइंग टेकी और हैविंग ए टेक सेवी टीम जो कि डिसरप्ट कर सके, या हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कन्वेंशनल अपॉर्चुनिटी है टू टर्न एग्रीकल्चर into massive business, to other industries, to retail, to garments, to products, to other things? क्या उसमें भी जाया जा सकता है? तो इस पे if you could shed some light and educate all of us in terms of के क्या एक आइडिया दिमाग में आ जाने से मैं स्टार्टअप बन जाता हूँ, या एक स्टार्टअप बनता कब है? So over to you. Very important question. I think one of the notions that you need to understand when we look at Silicon Valley, when we look at what Google has achieved, what Microsoft has achieved and all that, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है. तो कल्चरल डिफरेंस वो ये है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो 16-17 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि गो आउट एंड वर्क, and then he has to start working, he has to make his own living, he starts working at Subway, McDonald's, KFC, whatever, all kind of odd jobs. And from that point onwards, he starts understanding about money. He starts understanding about the world. कि पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे खर्च कैसे करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं. कल वो थोड़ा सा उसी ऑड जॉब के अंदर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो नीचे लोग मैनेज करता है वो. And that all of those soft skills help him when he has an idea. Now the unfortunate part is in Pakistan कि हमारे यहाँ पर आवाम जब तक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं करती उससे पहले वो काम कहीं नहीं करती. कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या कहीं पर भी एक इंटरेक्शन नहीं होता उनके साथ. अभी मैं ये नहीं कह रहा कि इंटर्नशिप्स काम की नहीं है, लेकिन इंटर्नशिप्स भी है, बट यू स्टिल नॉट डूइंग इट टू मेक मनी. यू स्टिल नॉट डूइंग इट as a
to run your finances. You are just doing it because you have to meet your university credits. या कोई एक certain purpose है उसको achieve करने के लिए. And this is what I have seen as well, because I started my venture after working in the corporate environment for 8 years. And that helped me a lot in understanding how to make this idea into a business, because idea is an idea, right? That doesn't mean that it has legs. And you all can have ideas, and all ideas are great. No ideas are bad. Let me be very, very clear about it. All ideas are great. 99% does not matter about idea. It's all about execution. Now, how do you execute that? You need to find people, you need to raise money, you need to talk to vendors, you need to make margin out of it, you need to manage finances, you have to fire people, you have to motivate your people as well to work for you. How do you do that, right? All of that needs some kind of understanding of how the world works, of how the human behavior works. Now, this is not easy to do. So I generally advise, now this is a humble advice, आप ले ना ले, आपको लगता है आप कर सकते करे, कोई मना नहीं है. कोई भी, as I said, वकार भाई अनलर्न करे, जो भी करना है कर ले. लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए, थोड़ा काम करे, और मैंने 8 साल लगाए, आप 3 साल में कर ले. लेकिन पर्पस के साथ जाए कि यार मुझे करना है, आई वांट टू गो बैक टू माय आइडिया. आप कोई ट्रेन नहीं निकल ली जा रही, आपका आइडिया कोई चोरी नहीं कर सकता. आपका आइडिया किसी ने अगर चोरी कर भी लिया है, यानी किसी ने अगर करीम बना भी लिया है, तो दूसरी करीम आप भी बना सकते हैं. कोई किसी को रोक नहीं सकता है, as long as you understand the problem you're solving. The second question was about, is it only tech? No, it is not. Let me be honest about it. Startup is all about, startup में और एक business में फ़र्क क्या है? देखिए, startup की एक जो खूबसूरत बात है वो ये है कि they experiment. They experiment from get-go. They experiment from day zero. They fail more often than they succeed. But once they succeed, then they scale from that point onwards. Now, I don't know if you know about the story of Careem. Careem, हमें पता है कि success है कि पाकिस्तान में आया, launch हो गया, success हो गया. No, it failed for 4 years. Did you guys know that? 4 years तक they were trying to build a solution in Middle East market in Dubai, which did not work out. When they launched a different version of that in Pakistan, then it scaled. Then they went to Egypt and other similar countries. So what I'm trying to get to here is that you can have business in anything, be it agri-tech, be it manufacturing, be it textile, as long as you can understand the problem in detail. हमें लगता है कि solution important है, solution important नहीं है, problem important है. जितना हम प्रॉब्लम के लेयर्स ऑफ लेयर्स के हम डीप में जाते जाएंगे, कि मैं अगर मिसाल दूं करीम की, आपको लगता है कि करीम, हमें क्या लगता है करीम क्यों सक्सेस हुई पाकिस्तान के अंदर? बिकॉज उसकी ऐप थी. व्हाई? व्हाट वाज द पेन पॉइंट? उसका एक और पेन पॉइंट ये था कि क्या रिक्शाज नहीं थे? रिक्शाज थे कराची के अंदर, तो रिक्शा कहीं भी मिल जाएगा आपको. लाहौर में थोड़ा सा इशू है, इस्लामाबाद में शायद थोड़ा सा इशू है, वहां पर भी सॉल्व हो गया. क्यों है? फेयर निगोशिएट करना पड़ता है. हमें नहीं पता, मैं एक शहर में नया हूं, मुझे नहीं पता इस शहर में इस जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में कितना फेयर लगेगा, मुझे पता ही नहीं कितना लगेगा. वो टैक्सी वाला मुझे कह रहा है 300 रुपये लगेगा, होना असल में 200 रुपये चाहिए था. नाउ दिस ऐप डिसेंट्रलाइज दैट, मेड इट लाइक अ मीटर. अगर इमेजिन करें कि आपके हर टैक्सी में मीटर लगा होता, जो कि एक जमाने में हमारी रिक्शाज के अंदर लगा होता था, लेकिन वो आज नहीं है, पिछले 10 साल में उठा के देख ले. अगर वो होता तो शायद ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले से ही सॉल्व था. So what I'm trying to get here is that you can build anything in any space as long as you can understand the problem, innovate in that you can do it differently. We can, as Mazhar Saab said, about efficiency and increasing the productivity. If you can increase the productivity, if you increase the efficiency in any single segment that you are doing, then we can disrupt it. Pakistan is a huge agricultural country. हम उसके ऊपर क्यों काम नहीं कर सकते? There are a lot of things that can be done, and farmers are trying to do that. There is a international company in Pakistan, China की company है, I forgot the name. They are working with farmers, with more than 40 to 50,000 farmers. Why can you not build something similar in that space? So definitely, I think it's not just to do with tech. Tech is just a fancy thing. It is really hard to scale it, to build it, and find a team.
I would encourage you to do it with experience, not just get into it. You can get into it. I don't have a problem. You will only learn. You will not fail. You will only learn. That's my 2 cents. Great. Thank you very much. I have a very important and an interesting, because I am also a young entrepreneur or being a part of multiple organizations, and I also interview and work with a lot of young people around. And all three of you have been through, and you can of course choose to answer, whoever wants to answer this first, but मैं चाहता हूँ कि आप तीनों एक मे बी शॉर्टर वे में सही लेकिन इस बात का जवाब ज़रूर दें. एक एटीट्यूडनल शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं बार बार और हमारी कॉन्वर्जेशन में डे 1 से आ रही है. हाउ डू यू थिंक दैट attitude is a very, very big problem right now, or a very, very big hurdle right now in terms of getting to where we want to get to? So we graduate and we want a job which is 70,000, 80,000. I get to hear from a lot of youngsters कि मैं 30-40 हज़ार की नौकरी नहीं करूँगा, मैंने बड़ी मेहनत करके graduation की है. Then I get to hear from a lot of young people who come and give me interviews in my organization, and they say, उनसे मैं पूछता हूँ कि बताओ मेरा इदारा क्या करता है. So they say आप कुछ event management type कुछ देखा था आपके बारे में. So they have not studied my organization. Then I also met a lot of multinationals and national scale corporations and spoke to the HRs of it as well. आज बहुत सारे HRs वाले भी probably they'll try to make it. We spoke to them and we found out that the youngsters are not coming prepared for interview. They're not even studying what we do as an organization. They're just putting up the CV and copy pasting and email. बस कहीं से एक interview call आ जाए किसी तरीके से और उसके अंदर वो तैयारी नहीं दिखती, वो attitude नहीं दिखता, वो रवैया नहीं दिखता. So आप तीनों के ख्याल में what is that attitude apart from skill, apart from competence, because we as recruiters understand कि हम skill end में gauge करते हैं और attitude और character को पहले gauge करते हैं. So what is that certain attitude or character that you believe is the requirement of the industry right now? Because the filter is there, वो filter वहाँ पे लगा हुआ है इस वक्त. So we want to understand from you कि वो क्या एक attitudinal shift है जो हम नौजवानों के अंदर as an overall national scale पे आने की ज़रूरत है in order to become more employable or to become better entrepreneurs in the society. So any one of you could choose to answer first. Ma'am. वकार आपने कहा बहुत शॉर्ट उसमें आंसर करें. हम जो अब देख रहे हैं, what we want, what I want when I'm interviewing, and I will test it and I will judge it by asking some questions. ये 3 letters हैं, T, capital T, P, R. T, P, R. Can you repeat that? T, P, R. What does it stand for? Taking personal responsibility. I want to hire somebody जो मुझे ये दिखा दे इंटरव्यू में कि जो भी चीज़ इसकी तरफ दी जाएगी उस चीज़ के लिए they will take total personal responsibility to deliver. Don't look कि ये बंदा ये सफाई करना इसका काम है, प्रिंटिंग करना इसका काम है, मेल करना इसका काम है. नहीं, if needed आपकी जिम्मेदारी है. अगर कोई और कर लेगा आपके लिए वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई नहीं करेगा, हम कहते हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी में द बक स्टॉप्स एट यू. डोंट पास द पार्सल. जो काम आपने करना है उसकी जिम्मेदारी लें और करें. कोई अगर आपको हेल्प नहीं कर रहा, आपकी जिम्मेदारी है, आपने करना है. सो दैट्स व्हाट वी लुक फॉर. TPR, टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. For me, when I'm recruiting, I'm hiring, for me it's, I want to understand कि वो बंदा सामने वाला खुद ना अपने बारे में self aware है. Does he understand where he's heading? I'm not expecting anyone to say कि मैं कोई चांद पे जाना चाहता हूँ, मैं फलाना जाना चाहता हूँ. I'm not saying that. All I expect is that he is on a certain journey. He wants to get there, and he's trying to do things on a certain way. Even if he's changed his path, if he has changed his direction, as long as he can show me that he is onto something, and he's not just here for the sake of finding a job, of making money. Because I've hired people
on a higher salary than my budget that I set because I like this person. Because I understand कि यार ये बंदा जो ना कुछ कर रहा है ये और ये because देखिए when you're hiring in startup especially जिस तरह से इन्होंने कहा taking personal responsibility ये जो बार है ना ये बार स्टार्टअप में तो सबसे हाई होता है मतलब दूसरे जॉब्स में आई एम नॉट सेइंग कम होता है लेकिन हमारे इसमें तो इसके अलावा कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है बिकॉज एक ही रोल एक ही काम के लिए एक बंदा होता है और वो बंदा अगर उधर से नजर आ जाता है कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा ना तो ये स्टार्टअप में हमारा जो काम है ना ये काम खराब हो रहा है दिस इज नॉट है और आपके साथ भी ऐसे ही होता है नजर आ जाता है ना कि यार ये काम खराब हो रहा है ये कुछ सो बैकअप नहीं होता ये नहीं होता कि यार ये चलो यार ये 2-3 बंदे मिलके काम कर लेंगे एक ही बंदा टीम होता है एक ही बंदा जो ना वो फाइनेंस भी मैनेज करता है एक ही बंदा सारे काम कर रहा होता है सो मेरे लिए मैटर करता है कि यार वो किस जगह जा रहा है वेर इज ही हेडिंग इज ही इफ ही इज हेडिंग और वो मुझे अगर मेरे से ज्यादा स्मार्ट बंदा रख लो काम का बंदा है मेरे से ज्यादा स्मार्ट है हाँ एरोगेंट ना हो एरोगेंट नहीं चाहिए मुझे स्मार्ट हो एरोगेंट ना हो हम्बल हो एंड नोज what he's saying and not as I said Mazhar bhai completely like one word nobody owes you anything trust me nobody owes you anything आप आए यहाँ पे जॉब पे इंटरव्यू के लिए हमारा काम नहीं है आपको हायर करना आपका काम है कि बताए भाई हम आपको हायर क्यों करें सिंपल एज माय साइड इज दैट व्हाट यू सेइंग राइट सो दिस इज ऑल ग्रेट थैंक यू वेरी मच सर बहुत शुक्रिया मदर साहब टू यू देखें अगर कुछ सीनियर जूनियर दोनों का मैं बताऊंगा अगर इफ़ आई एम इंटरव्यूइंग समबडी सीनियर फॉर अ सीनियर रोल तो सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो समटाइम्स आई एम सरप्राइज्ड आई एम शॉक्ड दैट यू नो एट लेट्स से एट अ जनरल मैनेजर लेवल द पर्सन सेज कि वो मैंने आपकी वेबसाइट नहीं देखी भाई अगर आपने इतना बेसिक काम नहीं किया देखें लाइफ में you have to do hard work there is no substitute for hard work और आज के ज़माने में कहा जाता है do smart work ठीक है आप 10 घंटे काम करें और अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो बेकार है तो you have to work smart how long does it take to go to a website हर कंपनी की वेबसाइट होती है आजकल या नहीं ठीक है first thing you do you go to the website and you see what the company is about so you know so from that I will gain confidence कि ये the person I'm interviewing is really interested in this role. वो सिर्फ ये नहीं कि job change करने के लिए वो आ गए यहाँ. This is very important. And if it is for a junior person, देखिए बहुत सारी बातें इन्होंने बहुत important कही जो मैंने भी सीखी हैं. Next time अगर interview करूँगा तो मैं जहन में रखूँगा. So आप भी जहन में रखिएगा if I'm interviewing you कि यही सवाल जो मैंने सीखे हैं वही पूछूँगा मैं आपसे. ठीक है? So अगर आप if you are at a entry level पे punctuality, if somebody doesn't show up on time, I'm not going to hire that person for sure. Because for me, it's very important to be punctual. कि अगर आप इतनी planning नहीं कर सकते, that's very important. अच्छा आपने CV जो है, अच्छा by the way, my daughter runs a startup. So I asked her a couple of days ago, you know, I'm going to this panel interview. What do you think in your, because आप लोग hire कर रहे हैं, you are also part of a startup. What she says, you know, if somebody's email is not proper or if attachment उन्होंने भेजा और नहीं लगा हुआ attachment या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें तो I will not bother क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं मेरे पास इंटरव्यू देने I don't have time okay HR people are very busy और you know for HR for you आप जब अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए it is a huge thing आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये जॉब मुझे मिल गई तो मेरा करियर बन जाएगा या मैं कुछ बन जाऊंगा जो HR वाले साहब या साहिबा बैठे हैं वहाँ यू जस्ट अ नंबर यू जस्ट वन CV उनके पास कई दर्जनों CV आते हैं है ना तो आप यू आर जस्ट वन CV रिमेंबर दैट सो फॉर द HR पर्सन टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर CV क्या फ़र्क आप 2 का CV है मेरे पास तो जो ज़्यादा प्रोफेशनल होगा उसको मैं अटेंशन दूंगा ठीक है ना बिकॉज आई हैव अ जॉब एज एन HR मैनेजर आई हैव अ जॉब आई हैव टू फुलफिल माई जॉब एंड हायर द राइट पीपल सो बेसिक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं उन पे भी आप ध्यान दें ग्रेट थैंक यू वेरी मच सर मैं एक और इम्पॉर्टेंट सवाल और इसमें दिस इज द लास्ट वन एंड देन वील टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस एज वेल
हमारे सक्सेस के पैरामीटर बहुत छोटे हुए हैं कि मेरे 10 प्रमोशन, अक्सर होता है प्रमोशन हो जाती है, पोजीशन बढ़ जाती है लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ती, तो लगता है प्रमोशन नहीं हुई। अक्सर तनख्वाह बढ़ जाती है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होती, तो लगता है प्रमोशन हो गई। सो हमें अगर 3 साल तक एक सर्टेन सैलरी पे काम करना पड़ता है या 2 साल तक चैलेंजिंग सिचुएशन में इदारे के साथ स्ट्रगलिंग टाइम से गुजरना पड़ता है, तो हमें लगता है कि हम कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहे या हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी में, आप तीनों की ज़िंदगी में वो एक अनकॉमन फैक्टर ऑफ सक्सेस क्या रहा है? What has been one uncommon factor of success that you would say कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे uncommonly बहुत आगे बढ़ाया है? एक तो होता है ना कॉमन हम सब में कि भाई हम सब बड़े कॉम्प्रिहेंशन रखते थे अपने काम में, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी स्ट्रांग थी, बट देयर कुड बी वन अनकॉमन स्किल और वन अनकॉमन फैक्टर दैट यू कुड से दैट रियली हेल्प्ड यू टू स्टैंड आउट in the market and become who you are today. So what is that one uncommon factor? Starting from ma'am and then sir you and then Sipten. Oh my God, that is a tough one. Last, I hope, and tough. Absolutely. बड़ा सोचना पड़ रहा है, जो अभी मेरे दिमाग में सामने आ रहा है. You know, what people have said about me is कि वही वाली बात, TPR इज समथिंग जो घुस गई है, मेरे DNA में घुस गया है कि एक बार अगर हाँ कर दी किसी चीज़ के लिए तो वो फिर इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट आउटसाइड रिस्पेक्ट, इट इज़ अबाउट माई ओन रिस्पेक्ट. मुझे सबसे पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करना है और मैं सबसे पहले अपने आप को रिस्पेक्ट उस वक्त करूँगी when I deliver on the promises I have made. So एक बार अगर हाँ कर दी तो वो काम दिलो जान लगा के अपने पोटेंशियल, अपने फुल पोटेंशियल पिक करना है. और उसका एक एग्जांपल ये है कि एज अ ट्रेनर HBL में मैं नई आई थी और हमें जाकर एक ट्रेनिंग करानी थी. हमारी गिलगित और स्कर्दू के एरिया में हमारी ब्रांचेस हैं कुछ, और स्कर्दू जाके हमने कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग करानी थी. चले गए, पहुंच गए वहाँ पर. आई वॉज अ सिंगल ट्रेनर, आई वॉज अ फीमेल ट्रेनर एंड माई होल ऑडियंस वॉज मेल ऑडियंस. लैंग्वेज बैरियर था, कल्चरल बैरियर था, और सबसे बड़ा जो बैरियर था वो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बैरियर था. हमें आदत थी कराची में जब हम ट्रेनिंग कराते हैं, हमारा कमरा सेटअप होता है, ट्रेनिंग रूम होता है, मल्टीमीडिया लगा होता है, स्क्रीन होती है, टेबल्स लगी हुई होती हैं. गेस व्हाट, शिगर पहुँचे, बड़े देवर एक्साइटेड, यू नो, कराची से कोई आया ट्रेनिंग के लिए. और कहाँ पर होनी है ट्रेनिंग? शिगर फोर्ट, एक होटल है वहाँ पे, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो होटल, वो तो होटल है. और मैंने कहा अच्छा चलें क्लासरूम दिखाएं जाके. क्लासरूम? व्हाट क्लासरूम? देयर वाज नो क्लासरूम. एक छोटा सा रेस्टोरेंट था. मैम दिस इज इट, हेलो ट्रेनिंग करानी है, मल्टीमीडिया? व्हाट मल्टीमीडिया? देयर वाज नो मल्टीमीडिया. फ्लिप चार्ट्स? नो. सो सुबह हमारी ट्रेनिंग होनी थी और शाम को हमने जब देखा ये नज़ारा था, एंड ऊपर से तेज़ बारिश हो रही है बाहर, क्या करें? बट वुड यू बिलीव मी, इफ़ आई कैन शो यू सम ऑफ द फोटोग्राफ्स. सुबह 6 बजे उठ के कुछ थोड़ा सा काम रात में किया. हमने उनके एक पार्ट ऑफ डाइनिंग रूम को चेंज किया इनटू अ क्लासरूम. स्क्रीन्स लगाई. गेस कि हमारी मल्टीमीडिया स्क्रीन क्या थी? एक सफ़ेद बेडशीट. हमारा कमरा वाज ऑन द टॉप एंड उसका साउंड सिस्टम सही किया. जो उनकी डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ थी उनको किया, कुछ लाउंज के सोफ़े थे उनको थोड़ा सा इस्तेमाल किया. एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, इम्पैक्टफुल ट्रेनिंग दैट वी हैड इम्पार्टेड इन अ प्लेस लाइक शिगर, जो कि हमें अभी तक याद है. Why? Because पूरी जिम्मेदारी ली, वेट नहीं किया कि कोई जाके फोटोकॉपी करेगा, कोई मल्टीमीडिया सेट करेगा, नहीं, सब कुछ अपनी आस्तीनें चढ़ाई. एंड वी डिड what needed to be done, we did what needed to deliver it. Alhamdulillah, mashallah, that turned out very well. Great, thank you very much. Wonderful. Sir,
and then sir I'll come to you last. या देखें, इसमें दो एस्पेक्ट हैं. एक तो थोड़ा सा so I'll talk about early success in my career. I happened to be at one time in a role, so you know sometimes you are at the right place at the right time. एक इंडस्ट्री थी जो कई सालों से उसमें लॉस चल रहा था. The year I went there and we did some things and we made good money and we improved productivity. एक बहुत so कहने का मतलब ये कि मुझसे पहले जो लोग थे उसी बिजनेस में, they were working much harder than I was working. But कभी कभार ये भी होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता. और कभी ये भी होता है कि बहुत थोड़ी सी मेहनत में आपको रिजल्ट मिलता है. लेकिन देखें, द बेस्ट लर्निंग इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. अगर कंपनी लॉस कर रही है और अगर कंपनी में डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर अर्ली आपके करियर में अर्ली इस तरह का एक्सपीरियंस हो जाए तो यू बिकम हार्डन्ड, यू नो, आप यू बिकम रेडी फॉर मोर डिफ़िकल्ट टाइम्स. द अदर थिंग इज़ कि आई वॉज लकी टू बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी वर टॉट टू थिंक दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू मी. यानी ये एक आप खुद इसके मालिक हैं, इस तरह का एटीट्यूड आपका होना चाहिए. तो जब उस इदारे से मैं किसी एक मल्टीनेशनल में गया तो वहाँ ये एटीट्यूड नहीं होता. मल्टीनेशनल में जनरली ये एटीट्यूड नहीं होता. वो लोग अपना नहीं समझते. जैसे आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो सरकारी नौकरियाँ लोग करते हैं, दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन एंड आई कुड बी रॉन्ग, लोग उसको अपना नहीं समझते. वो कहते हैं बस मैंने तो अपनी नौकरी करनी है, तनख्वाह लेनी है और किसी भी तरीके से मैंने आगे बढ़ना है. तो जब तक चीज़ को अगर अपना नहीं समझेंगे कि अगर कंपनी का लॉस हुआ तो उसको आप अपना लॉस समझें, और अगर कंपनी का गेन है तो आपका अपना गेन है. ये एक क्या कहना चाहिए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक फीलिंग जो है मुझ में डाली गई थी वेरी अर्ली इन माई करियर. सो दैट वॉज वन रीज़न वाई आई थॉट, बिकॉज इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस I was able to inculcate that kind of a sense of responsibility in the other organizations I led. देखें, मेहनत करने से डरना नहीं है आपने, एंड और अगर रिजल्ट नहीं मिले तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड. होगा, हर दफ़ा सक्सेस नहीं मिलेगी. अक्सर आपको डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर भी फेस करना होगा. और रूफी, आपने कहा था कि Nelson Mandela said, look at my failures. Failures are the pillars of success. So then over to you for the last comment and then we'll have some questions. For me, fear, facing my fears was the biggest reason why I'm here, I was a very introvert guy. आप लोग माशाल्लाह काफ़ी एक्सट्रोवर्ट टाइप लगते हैं सारे, लेकिन मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था अपने स्कूल के अंदर. किसी हद तक बुलीड भी था, और होते ही है, मतलब हर स्कूल में कोई ना कोई होता है जिसको बुली किया जाता है. तो आई वाज वन ऑफ दोस. आई वाज अ स्किनी गाय, सो एवरीवन यूज्ड टू बुली मी कि आज बड़ा स्किनी है. एंड I went through a phase where I had a lot of fears. When I moved to England for studies, जब मैं इंग्लैंड पढ़ने गया और वहाँ पे कोई नहीं था क्योंकि घर वाले इधर थे. I was there on my own, making new friends. खुद यूनिवर्सिटी जा रहे, खुद खाना पका रहे, सारी चीज़ें खुद कर रहे. And even looking for a job, I was also working over there as well while studying full time. So I think every step of the way I did. I had a lot of fears about. मैं मिसाल देता हूँ एक चीज़ की कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में था वहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन, इंग्लैंड में स्टूडेंट्स यूनियन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन एक्सिस्ट करती है जो स्टूडेंट्स के लिए रिप्रेजेंट करती है. प्रेसिडेंट होता है, एंड इट्स अ सबैटिकल पोजीशन, इट्स अ फुल टाइम पेड रोल. सो वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड कि यार आज तक कभी इस यूनिवर्सिटी, सो आई वेंट टू अ यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड की 7th लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है. 33,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ से एवरी ईयर, एंड दे हैव 7 कैंपसेस. सो ही सेड यार आज तक कभी स्टूडेंट्स यूनियन का कोई पाकिस्तानी प्रेसिडेंट नहीं रहा है, सो व्हाई डोंट यू रन फॉर द इलेक्शन. कोई भी इलेक्शन खड़े हो सकता था, कोई मुश्किल बात नहीं, स्टूडेंट थी.
मैंने बोला यार कौन सपोर्ट करेगा यार, मतलब अब हमें तो कोई जानते ही नहीं, हम तो यहाँ पे इंग्लिश भी सही से नहीं बोल पाते, हमारी थोड़ी सी ब्रिटिश एक्सेंट बनाते फेक सा हम. सो उसमें नहीं खड़ा हो, हम लोग सब करेंगे, कैंपेन करेंगे एंड ऑल दैट. सो वी हैड अ ग्रुप ऑफ लाइक फ्यू फ्रेंड्स हु बिलोंग टू द सेम यूनिवर्सिटी एंड वी रैन फॉर द इलेक्शन. I was the first Pakistani, first international student to get elected for a students' union, to get paid, to work over there, and all of that gave me so much confidence कि यार if I can attempt it in a university जहाँ पे 80% white है, गोरा है, Pakistani, Indian are very few, very little, and then it just I'll tell you another experience. मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू जब दिया था, जिस कंपनी में मैंने काम किया 8 साल, तो इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या प्लान है, फ्यूचर का सवाल पूछते ना, व्हाट इज योर 5-year प्लान, व्हाट इज योर विजन, राइट? Which I think is a stupid question to ask, but I asked that as well, but I just want to see what they say, right? So I was asked this question कि यार आप क्या करेंगे 5 साल में? मैंने बोला मैं 2 साल में नौकरी छोड़ दूंगा ये वाली. बोला 2 साल में नौकरी छोड़ देंगे? बोला हाँ, मुझे अपना काम करना है. एंड आई वॉज सेइंग दिस टू द CEO ऑफ द कंपनी, राइट? एंड ही हायर्ड मी. तो मैंने उसको कुछ अरसे बाद जब थोड़ा सा फ्रैंक हो गया, मैं खुल गया उसके साथ, तो मैंने पूछा यार आपने मुझे हायर क्यों किया? उसने बोला यार तुम्हारा कुछ पर्पस था ना, कुछ कर जाओगे तुम, तो यहाँ पर भी कुछ कर जाओगे. अगर तुमने 2 साल में हमारे लिए कुछ कर जाओगे क्योंकि तुमने कुछ सोच कर आए हो. एंड दैट इज़ वाई, सो वहाँ पे भी मेरा फियर नहीं था कि यार मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी. मेरा पर्पस था, मुझे पता था मैं कहाँ जाना. 2 साल नहीं लगे, 8 साल रहा उस कंपनी में, फिर जॉब छोड़ी, फिर काम किया. लेकिन या दिस इज फेसिंग द फियर. Great. Thank you. Thank you very much. I think wonderful conversation. I'm very, very grateful to the three of you. Any questions? Oh, so many out there. I could take 2, 3 because there's another guest waiting as well for the next segment. We're going to take one by one. Yes, ma'am. Hello. Assalamu alaikum. My name is Naptal Sid. I'm from Lahore. So this whole discussion is all about what employers are expecting. Let's just discuss what employees are expecting. Okay? So why there is employee exploitation? Like, let's just discuss about your concerns. We are giving 100%. We are punctual. We are doing overtime, and we take responsibility. जो job roles हम उनसे भी ज़्यादा काम करते हैं. But what then we even that हम लोगों को वो appreciation भी नहीं मिलती. Why is that the fear कि replace ना कर देंगे लोग? So ये इस तरह का क्यों ये चीज़ है? हम लोगों को, और I guess यही reason है क्यों why people are leaving the jobs. Organization doesn't work on employee retention. Employee retention, the rate is like 20%. So why is that so? क्यों employee retention? We don't want that reward in monetary. That's just the words. But वो words नहीं मिलते. So why is that so? किससे है आपका ये सवाल? Anyone can answer. एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, या एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन इतनी क्यों है? कह रही है ये पूरा पैनल ज्यादा इस बारे में हुआ है कि एम्प्लॉयर क्या एक्सपेक्ट करता है. लेट्स हैव सम कन्वर्सेशन अबाउट कि एम्प्लॉई क्या एक्सपेक्ट करता है. वो आपके लिए डे नाइट काम करता है, एक्सप्लॉइट होता है, और कभी कभी अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती. Appreciation, reward, like rewards हैं, वो एक monetary reward है, and it's like by words. We don't want monetary. Monetary भी नहीं चाहिए. Words. Why? That वो you did a great job. You want to hear that? Yes. You did a great job. Yes. Right now, let's. So it's like a fear कि वो replace ना कर दे हमें. Why is क्या that? लीडर्स खौफ खाते हैं कि ज्यादा ऊपर करा तो फिर ऊपर ही निकल जाएंगे? मैम, टू यू या सिप्तेन? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये, मुझे लग रहा है जहां आप काम कर रही है वो सही जगह नहीं है. पहले तो वो नहीं, sometimes because देखिए, as an employee it is your responsibility to choose an employer as well. Yeah. So there is no harm in quitting a job if you're not happy at a place. नहीं देखिए, मैं अच्छा देख, Now you have asked your question. Now listen to the answer. एक तो ये है कि अगर जहां पे अप्रिसिएशन नहीं है तो वहां ज्यादा देर काम करने की जरूरत नहीं है. पहली बात ये, ठीक है. दूसरी बात ये कि अगर वो उस जगह पर जहां पे आप काम कर रहे हैं और आपको वहां से कुछ हासिल करना है, जैसे कि मैं मिसाल देता हूं, आपको इंश्योरेंस में कुछ काम करना है, जिंदगी में कुछ अपना स्टार्टअप करना है, मिसाल दे रहा हूं मैं, आप आ जाए मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, और मैं आपको ज्यादा अप्रिशिएट ना करूं, लेकिन आप बर्दाश्त करे हो,
क्योंकि आपने सीखना है, पर्पस है। पर्पस क्या है कि यार मैंने यहाँ से इंश्योरेंस का कुछ सीख के जाना है, मुझे अचीव करना है, मुझे वो गोल लूंगा, मैं चला जाऊंगा, भले मुझे अप्रिशिएट ना मिले। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो मेरे हिसाब से फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने की वजह नहीं है, बिकॉज इफ यू आर नॉट अप्रिशिएटेड देन यू शुड नॉट बी स्टिकिंग अराउंड। और तीसरी चीज़, एक और चीज़ वो ये कि देखिए लाइफ इज़ नॉट ईजी, यू विल नॉट फाइंड आइडियल एम्प्लॉयर्स, यू विल नॉट फाइंड कि यार छोटी छोटी बातों पे आपको अप्रिशिएट किया जाए, छोटी छोटी चीज़ों पे किया जाए। काम शुरू में, ज़िंदगी में जितना काम आपको शुरू में करना पड़ेगा उतना आगे जाके नहीं करना चाहिए पड़ेगा मोस्ट लाइकली। आई थिंक मज़ा साहब कैन एक्नॉलेज दैट एज वेल। बाद में आके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मेकिंग होती है, शुरू में थोड़ा सा लेग वर्क ज़्यादा होता है, हार्ड वर्क ज़्यादा होता है, आगे जाके थोड़ी स्ट्रैटेजी पे आ जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर आ जाता है। शुरू में अपने अर्लियर करियर में इन द फर्स्ट 10 years टेक वर्क एज प्लेजर, डोंट टेक वर्क यार ये घंटे लगा रहा हूँ, 10 घंटे लगा रहा हूँ, 11 घंटे लगा रहा हूँ, 24 घंटे भी काम करना पड़ता है तो पड़ता है। एज लॉन्ग एज यू गेटिंग आउट समथिंग, अगर उसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा है ना, अचीव नहीं कर रहे, कुछ लर्न नहीं कर रहे, तो देन देयर इज नो पॉइंट, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, फिर ना करें। लेकिन लर्न कर रहे, ख्वारी करनी पड़ी है, डू इट, देयर इज नो हार्म। नहीं, देखिए जो बात इन्होंने की, मैं थोड़ा सा उसको, मैं somehow maybe that's the way I am, मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल ले जाती हूँ, और ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और वो ये कि देखो, अप्रिसिएशन आपको बाहर से क्यों चाहिए यार? यू शुड बी एबल टू खुद ही अपने शोल्डर पे पैट करो कि वाओ मैंने क्या काम किया। बिलीव मी, डोंट थिंक कि ये सिर्फ वर्ड्स हैं जो मैं बोल रही हूँ। आई हैव लिव्ड थ्रू दिस। रात को जब सो तो खुद अपने आप को कहो कि यार मैंने वो प्रेजेंटेशन बनाई थी, क्या जबरदस्त बनाई थी, मुझे कोई बोले या ना बोले, आई एम हैप्पी। वेल दैट्स माय फिलॉसफी। Great, thank you, ma'am. Thank you very much. Sir, you want to add to this? Yeah. Yes. So very early in life, I was told by someone, you cannot change your boss. You cannot change your boss. You can change yourself, but you cannot change your boss. If you're stuck, जो सिप्तैन ने कहा, if you're stuck in a situation where you're not appreciated, then you have to find yourself other opportunities. और देखें नुकसान, इन्होंने भी कहा आपका नहीं है, नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का है। An organization is all about people. If you don't appreciate your people, if you don't motivate your people, और I go back जो पहली मैंने चीज़ कही थी कि आप जो है अपने मैनेजर के साथ बैठ के अपने गोल्स क्लियरली आइडेंटिफाई करें साल के बिगिनिंग में कि जी ये चीज़ें मैंने करनी है, एंड इफ़ यू डिलीवर्ड, यू सिट विद देम एंड यू डिस्कस दैट कि ये आपने बताया था, ये मैंने पूरा कर लिया काम। सो यू नो देयर हैज़ टू बी इक्विटी इन द रिलेशनशिप। So before we take that, I'd like to pass this comment for all of you. Private businesses do not run on public money. Okay? Private businesses do not run on tax money or public money. So no private entity is accountable to you, and you are not accountable to them when you have left the job. But while you are there, they are not answerable to you. You are answerable to them because they are the entity and you are hired. It's a brutal reality, but you will understand this when you will become the entrepreneur and you will hire people, and when they will say, tell the same for you. आप कैसी बॉस हैं, खड़ूस, आप मेरी बात ही नहीं सुनती. Then you will understand the pain of it. But of course, sir, thank you very much to the three of you. I can take one more. Yes. Hello. My name is Anuraj Karida. I'm a student of business management. मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, जो एरा जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो स्किल्स कौन सी इमर्जिंग स्किल्स हैं जो हमें इस वक्त अडॉप्ट करनी चाहिए, जो जॉब मार्केट में अभी इमर्जिंग है, जो जैसे हम जॉब हंट कर सकते हैं। और मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि ये बिटर रियलिटी है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो तो वही पढ़ा रहे हैं जो पिछले 10 साल में पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे आप कोई इंटरव्यू लेते हैं तो आप ये सोचते हैं कि वो एम्प्लॉय कोई वैल्यू ऐड करे। तो जब पढ़ते हम सेम ही हैं, जो 10 साल जो पहले स्टूडेंट पढ़ते थे हम भी वही पढ़ रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम कौन सी स्किल ऐसी लाएँ और कौन सी स्किल हमें खुद में ऐसी अडॉप्ट करें कि हम एज अ कॉम्पिटेंट हो जाएँ मार्केट में। So can you please tell us the few emerging skills? Quick skill sets that you believe are really, really important for people like us right now to grow and be competent enough in the industry right now. I think I can't tell you कि कौन सी इंडस्ट्री में जाए, वो तो आपका अपना डिसीजन है,
But I think the most important thing, I look like one of the things, because competition is tough, there all the CVs are सब एक जैसी ही लगती है, जैसे आपने भी कहा कॉपी पेस्ट ही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, एजुकेशन सिस्टम भी वैसे ही पढ़ा रहा है सबको एक ही तरीके से. सो आई थिंक टू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ यू नीड टू शो दैट यू आर अ सेल्फ स्टार्टर एंड you've done something in your own journey. जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी अपनी जर्नी में आपके अपना कुछ पर्पस होना चाहिए कि भाई आपने इंटर्नशिप्स की है, जैसे आप YLC आए हैं, आपने YLC से क्या हासिल किया, उसके बाद क्या अचीव किया आपने, what did you start on your own. Even if you started something and it didn't work out, that's fine. Even if you did a project at a university, why did you do that? Why did you decide to choose that? Because a lot of people just put the यार final year project था मैंने लिख दिया. भाई क्यों किया था, किसने बोला था, हासिल क्या किया इससे, क्यों कर रहे थे, कोई पैशन था, कोई रीजन था. एंड फॉर मी आई थिंक राइट नाउ वन ऑफ द थिंग्स विच आई क्लोजली लुक एट इज पैशन. कि यार उस बंदे का कोई साइड का पैशन हो, भले ही गिटार बजाने क्यों ना हो, भले ही कुछ और भी कुछ कुछ कर रहा हो, क्योंकि उसका अगर कुछ है तो उसका मतलब है कि वो ही इज एट समथिंग, ही इज नॉट लाइक सिर्फ वो नौकरी के लिए नौकरी नहीं ढूंढने आ रहा. एज आई सेड, वो मसला भी इस वक्त ये है कि सिर्फ नौकरी ढूंढने आते ना तो वो आपको लगता है यार ये तो ट्रांजैक्शनल है, एंड ट्रांजैक्शनल इज नॉट व्हाट we are looking for it. I am not looking for something transactional. I will just add to that जो अभी सप्तैन ने कहा, क्योंकि हम अभी कर रहे हैं और हम हायरिंग भी बहुत करते हैं. देखो एक ज़माने में HPL सिर्फ ग्रेजुएट्स लेता था कॉमर्स के या फाइनेंस के, राइट? IBA के होंगे या जिन्होंने अकाउंटिंग वगैरह मैनेजमेंट किया हुआ था. पता है अब जो हमने ग्रेजुएट्स लिए हैं 90% हमने MTs जो लिए वो लिबरल आर्ट से आए हैं, जिन्होंने म्यूज़िक किया हुआ है, जिन्होंने लैंग्वेज की है, जिसने लिटरेचर किया है, जिसने रिलीजन पढ़ा है, जिसने फ़िलॉसफी पढ़ी है. तो वो अब गेम से चेंज हो गया. हम क्या देख रहे हैं, आई सिट ऑन द इंटरव्यू पैनल्स, हम देखते हैं अ लर्निंग माइंडसेट. देखो आपका अगर दिमाग खुला हुआ है एंड यू आर रेडी टू लर्न एंड यू हैव द एनर्जी एंड ड्राइव एंड पैशन, जैसे इन्होंने कहा, हम आपको सिखा देंगे. यार वो सिखाना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके माइंडसेट को चेंज करना बिकम्स अ प्रॉब्लम. ये प्लीज़ याद रखें, जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाएं, टेक्निकल स्किल्स आप सीख लोगे, लेकिन द रेडीनेस, यू हैव टू सिट लाइक दिस कि मैंने सीखना है, जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं सीख लूँगा, नॉट एन इशू. लैंग्वेज सीखनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, अगर दैट इज़ द कॉल ऑफ द डे, आई विल डू इट. सो जस्ट दैट ओपन माइंडसेट, बी रेडी टू लर्न. इस तरह बैठना है कुर्सी के एज पे कि जो आएगा, जो अपॉर्चुनिटी आएगी, मैंने सीखना है. सो आई डोंट नो इफ यू विल कॉल इट अ स्किल, आई विल से कि इट इज अ माइंडसेट बेसिकली. But you have ऑन द लास्ट नोट, Great. But you have to show that in the interview. Like you have to represent, demonstrate करना है, और वो आपको कोई ना कोई किसी चीज के साथ बता सकते हैं कि मैंने इसको सीखा तो मुझे 2 महीने लगे, मैंने ऑनलाइन गया, मैंने कोर्सेरा पे कोर्स निकाला. मतलब you can demonstrate and say, wow, now you know how to learn. ठीक है, अब तुम्हें हम सिखा देंगे. आप पर्पसफुल होने चाहिए, ट्रांजैक्शनल नहीं होने चाहिए. ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है, पर्पस आगे बढ़ता है. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर. वुड यू लाइक टू ऐड टू दिस? देखिए, मैं एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रस्टी हूँ, तो वहाँ जो कोर्स होता है वोकेशनल ट्रेनिंग, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिशियन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं 6 महीने के. जो 6 माह का कोर्स है वो हम 1 साल में कराते हैं. 6 माह जो है, पहले फर्स्ट 6 मंथ्स या अगर 6 मंथ या 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर एंड बेसिक स्किल्स, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ. कि अगर आपने किसी के घर जाके काम करना है या आप अपने एक वर्कशॉप खोलते हैं तो वहाँ लोग आएंगे, तो आप उनको किस तरह, हाउ विल यू कंडक्ट योर सेल्फ. सो कंप्यूटर, इंग्लिश एंड बेसिक हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, लाइफ स्किल्स जिसको कहते हैं, वो हम सिखाते हैं. दूसरा, व्हेन आई एम एम्प्लॉइंग समबडी यंग, आई वांट देम टू बी इमेजिनेटिव. देखिए, मेरी जो एज है और जो मेरा करियर एक्सपीरियंस है, उसमें वो नई चीज़ों का मुझे नहीं पता. जो आज सिप्टेन के पास आइडियाज़ हैं और जो ये जिस तरह सोच सकते हैं ओपन माइंड के साथ, शायद मैं वैसे नहीं सोच सकता. तो आप अपने इमेजिन को किल ना करें. अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, इमेजिनेशन है, दिस इज़ व्हाट द न्यू एम्प्लॉयर वांट्स. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर. बहुत बहुत शुक्रिया.